Welcome for today's session. Is it audible? Yes, sir. Okay, so last time we had discussed the role of government in heritage tourism Tourism, yes, sir. at both the central as well as the state level. State go. So today we are going to take the third unit, that is heritage. It is sites. So we will talk about UNESCO. UNESCO is an organization that is United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization. Okay? Yes, sir. And it is an organization which was started in 1946. It is headquartered at Paris in France. Paris. Yes. So when we talk about this, what we say about UNESCO, UNESCO has a lot of role to play as far as heritage is concerned, because there have been a number of objectives for the existence of UNESCO. Main objective of its existence is to promote peace among the nations, and for the promotion of peace, culture has a high significance. So that is why UNESCO plays its role in the preservation of culture also. So when we talk about World Heritage Sites, UNESCO had already recognized the sites which are considered to be a heritage at the international level, and those sites are called World Heritage Sites. What are those called? World Heritage Sites. World Heritage Site. And when we talk about World Heritage Sites, there are 38 World Heritage Sites which are located in India. State World. And among those 38 world sites located in India, 30 are cultural sites, seven are natural sites, Nature. and one is a mixed one. One is mixed. Yeah, because UNESCO had approved already 38 World Heritage Sites which are located in India. So, as far as the heritage sites are concerned, India figures at 6th number in the world. Got it? तो इंडिया जो है ये छठे नंबर पे आता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी हेरिटेज साइट्स, जैसे मैंने बोला 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में है. तो दैट इज हाउ इट फिगर्स एट द नंबर 6. Okay. So I may show you a slide of those sites. Just a moment. Right now we are talking about those heritage sites which figure
in the World Heritage Site list. So there is Fatehpur Sikri also, that is in Uttar Pradesh. जी सर. Then there is a group of monuments at Pattadakal, that is again in Karnataka but Bagalkot district. Group of monuments at Pattadakal. Group of monuments at Pattadakal, that is in Karnataka. फिर महाराष्ट्र में ही एलिफेंटा केव्स है. एलिफेंटा केव्स, बहुत सारे टूरिस्ट्स जो महाराष्ट्र जाते हैं तो इन जगहों पे विजिट करते हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रोमिनेंट टूरिज्म डेस्टिनेशंस भी बन चुकी हैं. एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र की. तो फिर एक टेम्पल है, उसको कहते हैं चोला टेम्पल, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, दैट इज ऑल्सो इन. चोला टेम्पल. हाँ, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये भी तमिलनाडु में है. तमिलनाडु. हाँ. तमिलनाडु. जी सर. तो फिर वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंस नेशनल पार्क. सुंदरबंस नेशनल पार्क, दैट इज इन वेस्ट बंगाल. जी सर. तो फिर है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स. नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स, दैट इज एट उत्तराखंड. उत्तराखंड कुछ साल पहले एक नई स्टेट बन गई, उससे पहले वो जी सर. यूपी का पार्ट होती थी. ओके. तो जी सर. फिर उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची. मध्य प्रदेश में ये है. वहाँ पे सांची जगह पे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं. सांची. हाँ. जी सर. ये बहुत पुराने हैं. ये इनकी जो तवारीख हैं वो लगभग 2nd सेंचुरी BC के साथ वाबस्ता है. जी सर. सांची. जी सर. तो फिर दिल्ली की हुमायूं टॉम की हम बात करते हैं. तो ये जो मुगल डायनास्टी थी, ये उनके दौर का एक मोनूमेंट है. मोनूमेंट तो आपको पता ही है क्या होता है. ये किसी की मेमोरी में, सपोज कोई शख्स है या कोई खास इवेंट है, तो उसकी मेमोरी में ये बनाया जाता है. जैसे हुमायूं टॉम्ब, जो हुमायूं बादशाह था तो उसकी याद में ये टॉम्ब उसका बनाया गया. हाँ. जी सर. तो इसी तरीके से कुतुब मीनार का नाम तो आपने सुना ही होगा. तो कुतुब मीनार है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है. इट इज ऑल्सो एट दिल्ली. जी सर. देन वी हैव क्या कहते हैं इसको, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं, जहाँ पे पहाड़ी टेराइन होता है, वहाँ पे रेलवेज का बहुत डिफिकल्ट होते हैं रेलवे ऑपरेशन. जैसे अभी भी आपको पता है कि आवर स्टेट इज स्टिल नॉट कनेक्टेड टू रेलवेज विद द रेस्ट ऑफ इंडिया. जम्मू तक या उधमपुर तक कनेक्टेड है इंडिया के साथ, लेकिन अभी श्रीनगर इंडिया के साथ रेलवेज के थ्रू कनेक्टेड नहीं है. तो लोकली आप बारामुल्ला टू काजीगंज या बानीहाल चलती हैं ट्रेन. लेकिन इसमें जो डिफिकल्टी है, ये पहाड़ जो हैं बहुत सारे, इसमें जो एल्टीट्यूड्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो इसमें ये दुश्वार होता है ये रेलवे की पटरी को बिछाना. ठीक है. तो ये काम इसको थोड़ा हेक्टिक बनाती है.
So that is the reason actually why the railway operations becomes difficult in the places which are mostly surrounded by mountains. Okay. So in that aspect what we do, that is why there have been some places which although were hilly, but still they were connected with railways during earlier times. So they were called as mountain railways of India. Mountain railways of India, वो भी एक हेरिटेज के तौर पे उनको प्रोजेक्ट किया गया है, क्योंकि उस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज हैं. आज तो अब रेलवेज के ट्रैक्स बहुत बड़े पहाड़ों पर भी, अब लद्दाख को भी सोच रहे हैं रेलवेज के थ्रू कनेक्ट करने की, लेकिन उस वक्त वैसी मशीनरी नहीं थी. तो उस वक्त वो काम करना एक वंडर जैसा था, एक अजूबा जैसा था. तो उसमें माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में है कुछ. एक तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज जो वेस्ट बंगाल में, वो एक पहाड़ी रेलवे ट्रैक पाया जाता है. और नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो ऊटी तमिलनाडु में 19th सेंचुरी में बनाया गया था. तो वो भी एक हेरिटेज में कंसिडर किया जाता है. या शिमला में कालका रेलवे, कालका शिमला जो रेलवे हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, वो भी क्योंकि हिमाचल की भी जो टोपोग्राफी है रिजेंबल करती है विद कश्मीर, पहाड़ी इलाका है वो भी. तो वहाँ पर भी वैसा वो हुआ था, जो रेलवेज का ऑपरेशन था वो स्टार्ट हुआ था. ओके. तो इसलिए ये भी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में ये भी हेरिटेज कंसिडर किया जाता है अब. तो इसी तरीके से एक काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट जो पिलग्रिमेज टूरिज्म के हिसाब से भी काफ़ी अहमियत रखती हैं, वो है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया. इट इज़ इन बिहार, और बिहार नेपाल बॉर्डर के नज़दीक है एक जगह महाबोधि, जिसको बोधगया कहते हैं. तो इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कहा जाता है कि वहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा था, तो उसने उस एरिया में वो मेडिटेट किया है, तपस्या की है. तो इसलिए इस आवाज़ नहीं आ रही क्लियर? ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई विल. कट के आ रही है. ओके. जो महाबोधि टेम्पल है बिहार में. हाँ. तो वहाँ पे क्या हुआ था, उस जो महाबोधि, जो बोध गया जगह है, वहाँ पे कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा, जो गौतम बुद्धा थे, तो उन्होंने वहाँ पे इबादत की है, मेडिटेशन की है. तो इसलिए वो जो जगह है काफ़ी पवित्र, काफ़ी प्योर कंसिडर की जाती है. डिवोटीज जो उस फेथ से ताल्लुक़ रखते हैं अक्रॉस द ग्लोब, दे कम एंड विजिट दैट प्लेस टू गेट द spiritual benefits which are associated with that. So that is Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya. तो इसकी भी तवारीख लगभग 3rd century BC के साथ मिलती है. फिर मध्य प्रदेश में ही एक और हेरिटेज साइट है जिसे रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका कहते हैं. रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका, वो एक्चुअली कुछ रॉकी जैसे होते हैं ना, पहाड़ जैसे हम टनल्स होती हैं, पहाड़ में निकालते हैं ना टनल. जी सर. तो वहाँ पे कुछ नेचुरल ऐसी कुछ चीजें हैं पहाड़ों में, वो टनल्स जैसी ना, नेचुरल कुछ ऐसी जो काफी अट्रैक्टिव लगती हैं. तो उसको अब रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका कहते हैं मध्य प्रदेश में. ये इसकी तवारीख 30,000 साल पुरानी है. कहते हैं 30,000 सालों से ऐसे हैं वहाँ पे. जी सर. तो फिर महाराष्ट्र में काफी
इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं ना, वो शिवाजी जिसकी वहाँ पे काफ़ी रेवरेंस है। तो वहाँ पे एक सिंबल है उसका, उसे कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और पॉपुलरली उसको कहते हैं वीटी। वो वहाँ की जो रेलवेज हैं उसका एंड पॉइंट भी है। तो वो क्या इसका? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले इसका नाम अब चेंज किया, इसका पहले नाम था वीटी, इसको बोलते थे विक्टोरिया टर्मिनस। तो अब इसका नाम चेंज किया एज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो ये एक पुराना एक हेरिटेज है, मानो आर्किटेक्चर है उसका कुछ बहुत अट्रैक्टिव। ये महाराष्ट्र बिल्कुल सिटी में है, जहाँ रेलवे स्टेशन का जो पॉइंट है ओरिजिन, तो वहाँ पे ये वीटी, उसको वीटी स्टेशन कहते थे। अब तो नाम चेंज हो गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। सो इट इज इन महाराष्ट्र। तो ये 18वीं सदी का है। तो फिर हम बात करते हैं गुजरात की, और गुजरात में एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है जिसे चंपेनर पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। चंपेनर पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, इट इज लोकेटेड इन गुजरात। Then very famous complex in Delhi, that is Red Fort complex, जिसको लाल किला बोलते हैं। Red Fort complex is very famous, that is at Delhi. तो फिर दिल्ली में ही मतलब एक्चुअली ये एक जगह है जिसे कहते हैं जंतर मंतर। जी सर। है ना, काफी फेमस है। जी सर। तो वहाँ पे अक्सर क्या करते हैं, जो प्रोटेस्ट किसी को करना होता है तो वो उसी जगह पे जाता है, जंतर मंतर। सो दैट इज पॉपुलरली नोन एज ए प्रोटेस्ट साइट। तो वेस्टर्न घाट्स हैं, उनकी भी एक अहमियत है एज हेरिटेज साइट्स। वेस्टर्न घाट्स, हाँ। तो देन वी हैव हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कुछ, क्योंकि राजस्थान काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है जो हेरिटेज टूरिज्म की बदौलत से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हेरिटेज पैलेसेस भी हैं। आपके सिलेबस में शायद हेरिटेज पैलेसेस, हाँ, थोड़ा सा लास्ट यूनिट में हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो क्योंकि राजस्थान में काफ़ी वो कल्चर का, हेरिटेज का काफ़ी एक रोल रह चुका है। राजस्थान में जो कैपिटल है जयपुर, उसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो वहाँ पे हैं बहुत सारी ऐसे हिल फोर्ट्स राजस्थान में, जैसे कि कुंभलगढ़ में है, रणथंभौर में है, जैसलमेर में है, अंबर में है। तो वो हिल फोर्ट्स भी अहमियत रखते हैं हेरिटेज साइट्स की। तो फिर एक जगह है गुजरात में, दैट इज कॉल्ड रानी की वाव। रानी की वाव, तो रानी की वाव उसे कहते हैं। आई थिंक इट इज अ गुजराती वर्ड। तो रानी की वाव, इट मीन्स समथिंग बिलोंग टू क्वीन। तो वो भी एक पुराना आर्किटेक्चर है जो लगभग 11th सेंचुरी एडी का है। तो उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में फिगर अप किया है। तो फिर हिमाचल में है एक नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क।
a great Himalayan national Himalayan National Park. park. Then there is an archaeological site of Nalanda Mahavira at Bihar. जैसे लॉर्ड बुद्धा थे वैसे ही एक और थे, एक उनका नाम था लॉर्ड महावीर। तो उनकी एक साइट है जो कि बिहार में ही है, तो उसे आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा के नाम से जाना जाता है। फिर सिक्किम में है एक नेशनल पार्क, उसे खांगचेंजोंगा कहते हैं, खांगचेंजोंगा नेशनल पार्क। सो इट इज एट सिक्किम, it is at Sikkim. Then there is some architectural work of Le Corbusier, that which is at Chandigarh. ये एक्चुअली ली कॉर्ब्यूजियर जो था उसने वहाँ पे which that was a home to some numerous architectural projects एट चंडीगढ़। ये तो 20वीं सेंचुरी का ही है, ये मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, इसको रिसेंटली इसको किया है इंक्लूड इसमें। तो देन देयर इज द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है इट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो उसमें उसका जो बेसिकली अहमदाबाद का जो फाउंडर था इस सिटी का, उसका नाम था सुल्तान अहमद शाह। तो ही वाज एक्चुअली हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अहमदाबाद, सुल्तान अहमद शाह। अहमद इसका नाम अहमदाबाद उसी के नाम पे पड़ा। तो 15वीं सेंचुरी में उसने इसको साबरमती रिवर, वहाँ से साबरमती रिवर अहमदाबाद से गुजरता है, जैसे श्रीनगर से जहलम है। तो उसमें बहुत सारे इस अहमदाबाद की जो सिटी है इसमें काफ़ी, इसको फोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बहुत मस्जिदें भी हैं जो पुरानी मस्जिदें हैं, क्योंकि वो सुल्तान अहमद शाह के दौर की मस्जिदें हैं जो उसने बनवाई थी तब 15वीं सेंचुरी में। तो वो मस्जिदें अभी भी वहाँ पे हैं उसी हिसाब से। तो उसके अलावा वहाँ पे जैन टेम्पल्स भी हैं, और वहाँ पे वो पब्लिक वेल्स भी प्रिजर्व किए गए हैं। पब्लिक वेल आपको पता है किसे कहते हैं? पहले क्या होता था, पहले वाटर सप्लाई ऐसे नहीं होती थी घरों में, जैसे आजकल नल के घरों तक आते हैं, फिर घरों में पानी मिलता है। पहले शायद आपके साथ मैंने डिस्कस किया था एक टॉपिक में पिछली बार कि वाटर सप्लाई इरिगेशन भी कैसे होता था पहले, वो नेचुरल कैनाल्स के थ्रू। तो अभी हम बात किसकी कर रहे थे? अहमदाबाद की। अच्छा, वो पब्लिक वेल्स जो वहाँ पे है, वहाँ पे पब्लिक वेल्स हैं। तो पब्लिक वेल बेसिकली किसे कहते हैं कि ये मुझे आसान क्यूर ना आसान क्यूर वेल। तो उस वक्त फिर सरकार ने रखे थे कुछ वेल्स, और पानी लोग उन्हीं वेल्स से लेते थे, क्योंकि ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी भी घरों में नहीं थी कि लोग ट्यूबवेल लगाते पानी के लिए, वो भी एफर्ट नहीं कर सकते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने किसी जगह कुएं बनवाए थे, और वहाँ से फिर जो आसपास की बस्ती थी वो वहाँ से पानी हासिल करते थे अपनी रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए। तो अब आजकल तो वाटर सप्लाई हर किसी घर तक है। पब्लिक वेल्स की वो इम्पोर्टेंस आजकल नहीं है उस लिहाज से कि उससे लोग पानी ले, लेकिन अब उस चीज़ को प्रिजर्व किया गया है।
आने वाली जनरेशन्स, इस वक्त की जनरेशन्स को दिखाने के लिए कि देखो जी कैसे पहले होता था इस शहर में, पानी कैसे लेते थे लोग, कहाँ से लेते थे। पानी कैसे इस्तेमाल करते तो वो पब्लिक वेल्स भी वहाँ पे उन हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है, और उनको बाज़ाब्ता उनको फेंसिंग करके रखा है, तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं विक्टोरियन आर्ट की, जो महाराष्ट्र में है, मुंबई सिटी में। तो उसमें क्या है कि कुछ विक्टोरियन गॉथिक बिल्डिंग्स थे, जैसे कि क्योंकि उसमें जो आर्किटेक्चर था वो उस गॉथिक जो सिविलाइजेशन थी उसका आर्किटेक्चर वहाँ पे देखा जाता है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है और राजाबाई क्लॉक टावर है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे घंटाघर है वैसे ही वहाँ पे राजाबाई क्लॉक टावर है। तो और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, तो उसमें भी वो गॉथिक बिल्डिंग्स का आर्ट पाया जाता है। सो इसलिए वो विक्टोरियन एरा का आर्ट है, और इसको भी एज ए हेरिटेज साइट इंक्लूड किया गया है। तो फिर उसके बाद जयपुर राजस्थान जो है, वहाँ पे तो बहुत सारा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि राजस्थान जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो इसमें काफ़ी कुछ है जो वैदिक आर्किटेक्चर इंडिया का रह चुका है। तो वहाँ के जो गलियाँ हैं, वहाँ के जो मार्केट्स अभी भी हैं बहुत सारे, तो उनमें वो वैदिक आर्किटेक्चर दिखाई दिया जाता है। ओके। तो वहाँ पे जो मुगल्स का भी एक वहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट है, क्योंकि मुगल्स का आर्किटेक्चर भी काफ़ी अच्छा, मतलब उनका जो एस्थेटिक्स, सेंस ऑफ ब्यूटी, they were more sensitive to these things, to beauty and this architecture। तो उसकी भी वहाँ पे रिफ्लेक्शंस नज़र आती हैं। तो जयपुर को कंसिडर ही किया जाता है एज ए हेरिटेज साइट। गॉट इट? तो सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ दोज 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। हेरिटेज साइट। जी सर। ओके। जी सर। तो this is all for today, and anything you want to discuss, you can feel free. सर मैं वो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, तो सर जो हमारा प्रोजेक्ट है डूमगली का, हाँ। तो सर उसमें कुछ आइडियाज आए मुझे, तो उसमें मैं सर पूछना चाहती हूँ क्या वो मतलब मैं उनमें ऐड कर सकती हूँ प्रोजेक्ट में? बिल्कुल, आप बताइए क्या क्या आइडिया। वहाँ पे जो लोग जाएंगे, मतलब समर में जाते हैं, तो सर जो माल मवेशी उनके पास होता है, तो सर मतलब उनका वो मतलब गोबर जमा होता है, तो वो ऐसे ही फेंक, मतलब डस्टबिन, ओके, जहाँ उनको मर्जी वो फेंक दे रहे हैं, वही वो फेंकते हैं ऐसे। तो सर उसमें मतलब सर मेरा एक आइडिया, जी सर, उसमें सर एक आइडिया है सर, जैसे कि सर मतलब पिट बनाए, अगर हम उन लोगों से डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो पिट बना ले, राइट, तो क्या होगा, जो भी सर वो गोबर होगा तो सर ऐसे फैलाए नहीं डेस्टिनेशन पे, उस जगह पे वो उस गोबर को जमा करे पिट। राइट, तो सर क्या होगा, अगर वो 1 ईयर रखेंगे या 2 ईयर, तो उसकी एक अच्छी खाद बन सकती है। ओके, सर गोबर की खाद बनती है, तो फिर हम भी से वो मतलब डील कर सकते हैं, फिर वो बेच भी सकते हैं उसको, तो उनको उसका बेनिफिट आएगा। राइट, बेहतर इससे कि वो ऐसे फेंक देना, तो सर उसका कोई बेनिफिट आएगा, और सर वो जगह भी पोल्यूट हो जाती है, उससे मक्खियां जमा होती है, मतलब डिजीज होती है उससे, तो इससे बेटर है कि वो पिट बनाए और उसमें जमा करे, और उनको फायदा आएगा इससे, ना तो वो जगह पोल्यूट होगी और ना ही उनको कोई नुकसान होगा। राइट। और सर जो वहाँ पे, जी सर हो गया ये इसका, और सर जो वहाँ पे पानी है, मतलब सर पानी ऐसे ही है, कभी बहता हुआ पानी है या किसी जगह जमा है, लेकिन सर वो सही से उसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सर जो माल मवेशी होते, तो सर वो ऐसे ही जाते और पी लेते हैं ऐसे ही पानी, तो सर वहाँ पानी आगे बहता है, तो आगे कोई और इस्तेमाल भी करते उसको, तो
पानी पोल्यूट हो जाता है उससे। राइट। या तो सर और जी सर, जैसे वो मुंह धोने जाते हैं या कपड़े धोने जाते हैं तो सर उसी में ऐसे ही धोते हैं। तो सर वहां पे कि उनके लिए जो मशरू का पानी अलग निकाला जाए, जहां से वो फिर उस पानी को खाने के लिए इस्तेमाल ना करे। और सर फिर ऐसा नलका लगाया जाए या ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे उनको पीने के लिए अलग पानी हो, नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए उसके लिए अलग पानी हो, और उसके लिए अलग, मॉल मवेशियों के लिए अलग। तो सर वो सारा जो होगा एक ही जगह नहीं होगा, इससे पानी पोल्यूट नहीं होगा। तो एक सर ये है। ओके जी सर, तो सर इसमें ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सर इससे पानी पोल्यूट होने से बच सकता है। और बिल्कुल। सर जो अवेयरनेस का है, जैसे एक तो सर उनमें जो उनके साथ बकरवाल लोग जाते हैं तो सर उनके साथ बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो सर मैंने सुना है बुजुर्गों से कि पहले दौर में वहां पे मोबाइल टीम जाती थी, मतलब मोबाइल टीम जाती थी तो वो उन बच्चों को पढ़ाते थे वहीं पे। अच्छा। तो अब सर कुछ टाइम हो गए कि वो टीम अब नहीं जाती है। कितने साल पहले जाते थे? जी सर, लगभग 60 साल 50 साल ऐसे ही। अच्छा। ये सर मैंने अपने अबू से भी पूछा तो उनकी याद में वहाँ जाती थी, जब वो छोटे थे तो वहाँ पे मोबाइल टीम जाती थी। जी सर, तो अब वो मोबाइल टीम नहीं जाती है। तो सर ऐसा होना चाहिए वहाँ पे जो वो बच्चे जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि बकरवाल लोग तो अक्सर जाते रहते हैं हर साल। तो सर उनके लिए एक मोबाइल टीम होनी चाहिए जो उनके बच्चों को वहाँ पे पढ़ा सके। राइट। जी सर। जी सर, और उसमें ये है लोगों को समझाना, क्योंकि सर वो मडी हट्स है वो वहाँ पे रहते हैं, तो सर वहाँ पे कोई साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि सर उनको अच्छे से पता नहीं होता है हमें कैसे रहना है, क्या करना है, बच्चों को कैसे संभालना है। तो सर उनको मतलब समझाया जाए कि उनको कैसे रखना है, अपने घर को कैसे मेंटेन रखना है। हाँ वो जाते हैं डेस्टिनेशन पे, ये उनकी मजबूरी है और उनका काम भी यही है। तो सर उनको मतलब साफ सफाई जो है वो मेंटेन करनी है, जैसे कि वो मॉल मवेशियों के साथ होते हैं, लेकिन सर उनको समझाना है कि आप रहो, आपके पास है, लेकिन जो गोबर है इसका एक अच्छे से इंतजाम रखो, जो पानी है उसको पोल्यूट ना करो, डेस्टिनेशन को पोल्यूट ना करो। सर ऐसा हो सकता है उसमें। ओके, सो गुड। एज फार एज यू mentioned about the first suggestion, that is जो वहाँ पे गोबर या बाकी चीज़ें ऐसे बिखरता हुआ पड़ा होता है, तो उसके लिए वो एक पिट डेवलप करे जहाँ पे उसको एज ए मैन्योर यूज़ हो सकता है। सो दैट इज़ अ गुड आइडिया दैट कैन बी disseminated to the people of the locality। उनको अवेयर करना है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम। उसमें आप सजेशंस में लिख सकते हैं कि there should be some awareness programs in which the residents should be made aware about the utility of cow dung in producing manure। और मैं आपको दूसरा चीज़ बताऊंगा, उसको वो गैस भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल एक बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है जिससे काउ डंग को गैस बना सकते हैं और वो यूज़ भी हो सकता है घरों में, उनके चूल्हों में। ओके, सो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दैट रिगार्ड। कुछ वो उसमें प्रोवाइड भी करते हैं उसके लिए कुछ सिंपल इक्विपमेंट्स, और उससे उसका कन्वर्शन होता है गोबर गैस में। तो उससे एक तो बेनिफिट है कि उनको डोर स्टेप्स पे खुद ही वहीं पे सेल्फ सफिशिएंट होंगे वो गैस में जो उनकी रिक्वायरमेंट है, और उनको आसानी होगी कुकिंग में। उनको फिर लकड़ी का यूज़ नहीं करना है। एक तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी क्योंकि लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं है फायरवुड के लिए। दूसरा ये है कि जो बिखरता पड़ा हुआ होता है ये गोबर, वो वैसे नहीं रहेगा, वो साथ साथ यूटिलाइज हो जाएगा। या अगर मैन्यूवर में भी वो उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो द ऑप्शन, बिकॉज उससे वो अपनी जो कुछ ऑर्चार्ड्स या कुछ और किचन गार्डन्स या बाकी में चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उससे यहाँ से हाइजीनिक भी रहेगी डेस्टिनेशन और काम भी होगा, और उनको भी बेनिफिट आएगा। जो लोग हैं वो उसके साथ अच्छी तरह कोऑपरेट कर लेंगे उसके बेनिफिट्स को देख के। तो मेन चीज़ उसमें यही है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर जहाँ तक आपने पानी की बात की,
तो डेफिनेटली क्योंकि वो जो होता है वहाँ पे जो वो पानी में ऐसी चीज़ें करते हैं, तो मेन चीज़ उसका ये रीज़न है कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। जैसे आपने, क्योंकि नाउ आप में ये सेंस हैं, यू आर एजुकेटेड, तो आपको ये माइंड में आ गया कि इस पानी को जब यहाँ पे ये पोल्यूट करते हैं, फिर आगे इसी पानी से कोई और कुछ पिएगा, खाने के लिए यूज़ करेगा, तो वो बीमार भी हो सकता है या और कुछ हो सकता है। तो वो जो वहाँ पे यूजर्स हैं इस तरीके के, उनका अभी दिमाग ये चीज़ नहीं सोचता है। सो दैट मीन्स दोज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। तो मेन थिंग इज दैट वंस दोज पीपल विल बिकम अवेयर, जब उनको इस बारे में अवेयर किया जाएगा, तो वो और उनका जो थॉट है वो इस की ओर उनको उनका सोच लाया जाएगा, तो फिर वो ऐसी हरकतों से गुरेज करेंगे। They will desist themselves from indulging in such activities. So again there is a role of awareness. So that awareness is possible once there will be a mechanism for engaging people and get them know। जो आपने फिर बताया वो मोबाइल टीम्स का, तो वो उसमें अच्छा रोल प्ले कर सकता है। सपोज if a small team of volunteers is developed, जो पार्ट टाइम एक्टिविटी में ऐसा काम करे, कभी संडे है या छुट्टी है, तो सपोज आप हैं या आपके साथ कुछ या आपके ग्रुप के साथ जो काम कर रहे हैं, वही एक प्रोग्राम बनाए, चले जी आज हम उस बस्ती में जाए और हम एक प्रोग्राम करें उनके साथ। तो जो वहाँ की कमेटी है, मोहल्ला कमेटी या पंचायत होता है, क्या होता है, isn't it, उनके साथ पहले ही बात करके इस मामले में होगी कि अगली संडे को या इस दिन हम यहाँ पे आपके लोगों को के साथ बात करना चाहते हैं, इस मौजू पे इनको हम अवेयर करना चाहते हैं। तो फिर उस दिन वो लोग जमा होंगे कहीं पे और फिर आप उनके साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो दैट विल क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग दोज पीपल। तो उससे ऑटोमेटिकली जब अवेयरनेस आती है तो एक शऊर पैदा होता है, तो उससे इंसान का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होता है। जैसे आप अभी देखो आजकल आप देखो अभी 40 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन आप देखो कि 40 दिन पहले और आज यहाँ के लोगों में, या यहाँ के नहीं पूरे दुनिया के लोगों में कितनी अवेयरनेस आ गई कुछ चीज़ों के मुतालिक। सपोज आजकल लोग अक्सर हैंड वॉश करते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, किसी जगह से आते हैं बाजार से या कहीं से तो हाथ धोते हैं, isn't it? या सपोज किसी को छींक आती है तो वो रुमाल या कुछ आगे रखता है, या मास्क पहनते हैं अब लगभग बहुत सारे लोग, isn't it? तो ये तब हुआ जब एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि इसके पहनने से क्या बेनिफिट हैं इस वक्त, हाथ धोने से या सफाई रखने से। तो इस अवेयरनेस से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो इसी तरीके से जब उनको अवेयर किया जाएगा, उनमें भी ग्रेजुअली चेंज आएगी। फिर वो वैसा नहीं करेंगे जैसा वो अभी कर रहे हैं, जैसे ऐसे ही वो काउडंग फेंकेंगे, सड़कों पर रखेंगे, फिर उनमें ये सोच आ जाएगा। So it is nice that you are thinking about this sort of matter, and you can incorporate this in the suggestions of your project। जो last chapter है conclusion and suggestion, तो उसमें suggestions में बहुत अच्छा content बनेगा उसका, ठीक है? तो that is good। Okay, take care। With this we conclude the session। Thank you sir। Okay, अल्लाह हाफ़िज़। बोलो बेटा। आप क्या करो उसको।